Okay class, let's move to the solution of those questions which I have given earlier. So you see that there is the first, what you have to do, the stepwise the question, the solution is given. Stepwise, the first step is, let us consider the position of Ridhima. She is standing at 12th position from the back. It means this is the back, and from the back she has 12th position. Okay. Next, after interchanging position with mother, she becomes 18 from the back. Okay. Again, मतलब जब वो माधव के साथ चेंज करती है तो माधव की पोजीशन क्या थी? वैसे तो 12 थी, लेकिन जब उसकी पोजीशन मतलब रिद्धिमा यहाँ से जब माधव की जगह पर जाती है तो वो 18वीं पोजीशन पर पहुंच जाती है. तो इस हिसाब से भी उसकी स्थिति क्या हो गई? 18 हो गई. इधर आप न्यू पोजीशन ऑफ रिद्धिमा इज आल्सो 20th position from the front. So again we are going to consider the position of Ridhima. So it is the same position where Madhav was standing earlier and 20th position from the front. So Ridhima is 18th from the back, which means there are 17 cadets to her back. मतलब उसके पीछे कितने स्टूडेंट थे? 12 कैडेट खड़े थे. And she is also 20th from the front, क्योंकि माधव उस जगह पर खड़ा था जहाँ पर वो BC पोजीशन पर था. तो इसका मतलब उसके पीछे कितने लोग खड़े थे? 19 लोग खड़े थे. मतलब इधर रिद्धिमा थी तो रिद्धिमा के पीछे कितने लोग खड़े थे? 17 लोग खड़े थे. और इधर माधव था तो माधव के पीछे कितने लोग खड़े थे? 19 लोग खड़े थे. ठीक है. तो और कितनी हुई? एक रिद्धिमा भी तो हुई. तो अब इन दोनों को हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं. क्लास में पेन यहाँ की कैलिब्रेशन बहुत बेकार है, इसलिए मेरे को समझ नहीं आया कि मैं कैसे लिखूं. बस मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, आप तो सब देख रहे हो. ठीक है. तो कुल मिलाकर हम इसे ऐड कर देते हैं, 37 कैडेट्स निकल जाता है. इसके अलावा मेरे पास एक और ट्रिक है जो आप लोगों को बहुत बड़े हो जाओगे तब पता चलेगी, लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ. जैसे किसी भी बच्चे की पोजीशन आपको फ्रंट से पता हो, ठीक है, और जब उसकी ही पोजीशन बैक से भी पता हो, तो आप क्या करोगे? उसकी शुरुआत की पोजीशन, उसकी बैक की पोजीशन दोनों को ऐड कर दोगे. ठीक है. तो इसका एक सॉल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं m प्लस n माइनस 1, ऐसा बोलते हैं. ठीक है. m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू जो आपका टोटल नंबर होता है, इसको बोलते हैं. एक सूत्र है, याद रख लो कि क्या करेंगे, किसी भी बच्चे की जो शुरुआती पोजीशन है, जैसे यहाँ माधव की पोजीशन शुरुआत में क्या थी? 20 थी, और बाद में उसकी पोजीशन अगर आपको बता दिया था कि बैक से उसकी पोजीशन इतनी है, तो उन दोनों को ऐड करके उसमें माइनस 1 करके हम पूरे बच्चों की संख्या को निकाल सकते हैं. समझ गए? तो ये भी एक तरीका होता है निकालने का. ठीक है. नेक्स्ट वन, the next answer is 4. In this one, since a leaf b means a plus b upon 2, the value of 2 leaf in bracket 4 leaf 8. So it would be 4 leaf 8 is equal, sorry, 2 leaf in bracket 4 leaf 8 is equal to, पहले क्या करेंगे हम? 4 प्लस 8 को चेंज करेंगे. तो 4 प्लस 8 कैसा हो जाएगा? 4 प्लस 8 अपॉन 2. इसको ब्रैकेट में है तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या हो जाएगा? 12 अपॉन 2 and that would be 6. And then again the 2 and leaf is there, then 6 it is given, so it will be changed into 2 plus 6 upon 2, that would be answer. 6 to 8, 8 upon 2, that would be 4. So the answer is 4. Next one, the next one is answer is red. If you look, what was the question? The question was, if you look at the circle chart carefully, you will notice that the color which has at least survey in the circle chart is red. The color which has at least survey in the circle chart is the least liked color among the student in the Lucknow. So therefore, the least liked color among the student is Lucknow is red. Yes, beta. You have to just survey out, okay? Next one, the 9th one. Wait, let me read the question also. There is the question. During a day, the hour hand and the minute hand of a clock form a right angle. You know that, form a right angle. It is not telling where is the, what is the direction of the hour hand and the
we are not knowing about it. We are just knowing that it is just making what? It is making right angle. Right angle means 90 degree angle. मतलब अगर ऐसे 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 ये हो गया आपका राइट एंगल. ये भी नहीं पता है, ये भी हो सकता है कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है. ठीक है. So at multiple times, okay, during a day, our hand and minute hand of a clock form a right angle at multiple times. You know that. For example, the two hands from a right angle at 9 a.m. How many times during a day, 14 hours, will be the two hands from right angle? तो अब आपको बताना है कि जैसे अगर आप ये कहते हो एग्जाम्पल के लिए कि टू हैंड्स फ्रॉम अ राइट एंगल एट 9 AM, जैसे 9 बजे क्या होता है राइट एंगल बनता है. ये आपको एग्जाम्पल दे रहा है. तो आपको बताना है कि आप पूरे दिन में कितनी बार दोनों हैंड मिल करके क्या बनाएंगे राइट एंगल्स बनाएंगे. सो यू हैव टू काउंट इट. सो हाउ यू विल काउंट इट, लेट्स सी. First one, let's look at the clock at 9 AM. We can see that the hour hand and the minute hand are making a right angle. In a clock, while the minute hand moves, the hour hand also moves, although at a lot slowly. It is easy to see that in 12-hour period, the minute hand take 12 revolution while the hour hands make one only. Okay? So we can visualize the above statement this way. If we hold the clock in one hand and always keep on rotating it slowly such that the hour hand always stay on the same position and the minute hand will make 40, 12 minus 1 is equal to 11 revolution. So in other words, the minute hand makes 11 revolution around the hour in a 12-hour period. Step 3. For each revolution around the hour hand, the minute hand makes right angle twice with it. The total number of times we see the two hand making a right angle is 11 multiplied 2 is equal to 22. In 12 hours, the number of times the two hands make a right angle 22, and in 12 hours, the number of times the two hand makes a right angle 22 multiplied 2 is equal to 44. Next one, the 10th one. Let's first try to find the value of each of one. Given three terms. Yes. Mama, I didn't understand the previous one. Previous one, इसको समझने के थोड़ा आपको और बड़ा होना पड़ेगा. अभी आप लोग थोड़े छोटे हो इसको समझने के लिए. ध्यान से देखो, मैं आप लोगों को हिंदी में समझा देती हूँ. ठीक है. ये देखो, ये जो है आपका ये 9 है ना. अब देखो आपको क्या करना है. देखो सीधी सी बात है कि जो ये बड़ी छोटी वाली सुई होती है, ये क्या करती है, ये पूरे दिन में कितने रेवोल्यूशन लेती है. ये सिर्फ एक रेवोल्यूशन लेगी पूरे दिन में, क्योंकि 12 घंटे में एक रेवोल्यूशन होगा और फिर दूसरे वाले 12 घंटे में, मतलब एक बार AM में और एक बार PM में, ये पूरा कितना रेवोल्यूशन लेगी, एक और एक मिलाकर 2 लेगी. लेकिन आपकी ये वाली जो सुई है, क्या नाम है, जो मिनट हैंड है, ये कितनी बार लेती है, ये हर घंटे में एक रेवोल्यूशन लेती है. तो इस हिसाब से ये कितने रेवोल्यूशन लेगी, 1 2 3 4 ऐसे आप गिनते जाओ तो 12 घंटे बनाने के लिए 12 बार रेवोल्यूशन लेती है. क्लास हाँ, तो कुल मिला के 12 रेवोल्यूशन लेते हैं. तो उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं. क्यों? क्योंकि जो 9th वन है, मतलब 1 घंटा हम कम कर देंगे ना, क्योंकि 1 घंटे में पूरा करने में उसको 11 रेवोल्यूशन लगेंगे, क्योंकि उसमें से एक जो घंटे वाली सुई है उसको हम माइनस कर देते हैं. मतलब कि घंटे की सुई द्वारा लिया गया जो रेवोल्यूशन है उसको हम उसमें से माइनस कर देते हैं. ठीक है. तो ये कितने मिला के हो गए, इसके 11 हो गए. अब 12 घंटों में मिला के 11 रेवोल्यूशन हुए. उसके बाद उसको हम डबल में कर देंगे, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 12 घंटे में एक रेवोल्यूशन और दूसरे वाले घंटे में दूसरा रेवोल्यूशन. तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 का, तो आ जाएगा हमारा 22. और क्योंकि जो 24 घंटे हैं उसमें कितनी बार दोनों हैंड मिल करके राइट एंगल बनाएंगे, तो उसे हम दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये कितना हो जाएगा, 44. इसको आप लोग एक काम करना, आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा. घर में एक छोटी, मतलब जो हैंड बहुत छोटी है, उसको आप लोग खुद घुमा कर देखना, आप लोग खुद गिना, तो ये 44 ही आंसर आएगा. ये फिक्स है. ठीक है. ये आप लोगों को ऐसे थोड़ा सा और उसको ब्रॉड माइंडेड सोचोगे, आप लोग एक्सप्लोर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट है आपका, है ना, हाँ समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा है. अब नेक्स्ट वाले में क्या है, आपको ट्रायंगल्स की वैल्यूज दी हुई है. एक ट्रायंगल की वैल्यू कितनी दी हुई
हुई है उस वैल्यू के हिसाब से इसको माइनस करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और करके नेक्स्ट वी आर टोल्ड दिस वन इज इक्वल टू 12। तो अब इसको क्या करना है, पता करना है कि इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी। मतलब क्या करना है, पहले आपको सबकी वैल्यू पता करनी है, मतलब इसकी 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 और इसकी, क्योंकि अलग अलग इक्वेशंस दिए हुए हैं। उस इक्वेशन के थ्रू आपको पहले सारे शेप्स की वैल्यू पता करनी है। जब आप सबकी वैल्यू निकाल लोगे तो जब सबकी, जैसे इसकी वैल्यू कितनी निकली 4 निकली, इसकी वैल्यू आपकी 4 निकली, ठीक है। और ट्राइंगल की वैल्यू देखते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, स्क्वायर और आपका ये जो हार्ट है, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो अब हमारे लिए क्या हो गया, बहुत इजी हो गया इसे करना। कैसे, 5 में 1 का मल्टीप्लाई किया प्लस 4 लिख दिया प्लस 3 लिख दिया प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। तो कितने मार्क्स आ गए आपके, इन सबको जोड़ दिया और आंसर आ गया आपका 24। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ऑल द 10 क्वेश्चन।